فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈیرہ رانا ثناءاللہ پر حملے سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلے کی کاپی CD41 کو موصول 73 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ 59 ملزمان کو 10 سال قید کے ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ 3 سال قید کی سزا والے ملزمان کو 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم بھی سنایا گیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے CPO فیصل آباد کو ملزمان گرفتار کر کے بذریعہ عدالت جیل منتقل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ عدالت نے اعظم خان سواتی اور سمیفیہ طاہر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا۔ دونوں ملزمان اڈیالہ جیل میں ہونے کے سبب عدالت میں پیش نہ ہوئے تھے۔ ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 16 مجرمان کو 3 سال قید کی سزائیں، جبکہ 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے MPA اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ مرکزی قیادت کے 17 مجرمان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 109 میں سے 59 ملزمان کو 10 سال قید، 16 مجرمان کو 3 سال قید، جبکہ 34 کو بری کر دیا گیا ہے۔ فواز چودھری، زین قریشی کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ فواز چودھری کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی میرے بڑے بار کہنے کے باوجود وہاں پہ کسی جو ہمارے باقی دوست ہیں انہوں نے ڈیفینس ایویڈنس نہیں دی۔ یہ کیس جو ہے اصل میں تو جو پچھلے 3 کیس ہیں اسی کا ایک سیکوینس ہے نا۔ وہ پہلے 3 کیسز میں پھر فیصلہ آ گیا تھا، ظاہر ہے چوتھے کیس میں بھی یہی فیصلہ ہونا تھا، باقیوں میں بھی یہی ہونا تھا۔ لیکن سم ہاؤ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے جو لائرز ہیں انہوں نے کیوں یہ بہتر سمجھا کہ وہ ڈیفینس ایویڈنس نہ دیں۔ ان لوگوں کی جو ایلیبائی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم موجود نہیں تھے، وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہ دیں۔ تو سوائے میرے جو ہے اور اس کے کسی اور نے ڈیفینس ایویڈنس دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کیسز بھی سچی بات ہے کوئی اچھی طریقے سے لڑے نہیں گئے۔ اس میں لوپ ہولز تو بہت ہیں۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ جو ہے جب یہ اپیل میں جائیں گے معاملات تو یہ سارے کیسز جو ہیں ان میں سب لوگ انشاءاللہ بری ہوں گے۔ لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں ان فیصلوں سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کو جو پالیسی ہے اس وقت اگریسو پالیسی جو ہے PTI کی جو 2-3 سال سے چل رہی ہے اس نے اتنا پے آف نہیں کیا۔ اس کے اندر بھی بیلنس لانے کی ضرورت ہے، ہمارا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تلخیاں کم ہوں۔ فیصل آباد میں ضمنی انتخابات کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ انتظامی معاملات کو حتمی شکل دی جانے لگی۔ پارٹیز نے امیدوار فائنل کرنا شروع کر دیے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نے معاملہ کلیئر کر دیا۔ NA 96 اور NA 104 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار میدان میں اتریں گے۔ PP 98 پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی۔ فیصل آباد کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات۔ پولنگ اسٹیشن کے سول ورکس سے کام محکمہ بلڈنگ کو کام کرے گا۔ پولنگ اسٹیشن کے واک ٹو گیٹ، DVR، CCTV کیمرے نصب ہوں گے۔ اسٹیشنری سامان گاڑیاں کرائے پر لینے کے لیے ٹینڈر جاری ہوں گے۔ سرکاری کورس کالجز کی بحالی محکمہ بلڈنگ کے ذمہ ہوگی۔ ضمنی انتخابات کی تیاریوں کے لیے پیپر ورکنگ جاری ہے۔ فیصل آباد میں ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن سیل قائم کر دیا گیا۔ ریاض حسین انجم الیکشن سیل کے انچارج اور DRO کے فوکل پرسن مقرر۔ الیکشن سیل ضلع کونسل کی عمارت میں قائم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا چیف آفیسر ضلع کونسل کو سہولیات کی فراہمی کا حکم کہا۔ CO ضلع کونسل کمپیوٹر فرنیچر سمیت اسٹاف فراہم کرے۔ سیکورٹی گارڈ اور دیگر عملہ شفٹ میں تعینات کیا جائے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف حلقوں میں 5 اکتوبر کو ضمنی الیکشن کا دنگل۔ نون لیگ کے معاہدے کے بعد پیپلز پارٹی 4 حلقوں میں اپنے امیدوار اتارے گی۔ فیصل آباد کے حلقہ PP 98 میں بھی جیالہ امیدوار کھڑا ہوگا۔
ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात की रनर अप पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। NA 96 और NA 104 में नून लीग अपना उम्मीदवार लाएगी। पीपल्स पार्टी दोनों हलकों में नून लीग को सपोर्ट करेगी। PP 98 में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेगा। फैसलाबाद की सूबाई हल्का PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का फॉर्मूला तय। PP 98 से पीपल्स पार्टी का जयाला मैदान में उतरेगा। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर राना फराज अनीस कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों के पास जाएंगे, लीगी क़यादत को साथ लेकर चलेंगे, हल्के के तमाम लोगों को जीत कर तोहफा दूंगा। नाज़रीन, अब बात करें, आपको बताएं कि दरियाई चनाब में तुकियानी झंग के साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बस्ती मोचीवाला मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गई है। 2-2 फीट पानी खड़ा होने से मकीन महसूर होकर रह गए हैं। मामूलात से जिंदगी शदीद मुतासर, रास्ते भी पानी में खो गए। मुतासरीन को अशिया खुरनोश की किल्लत का सामना। जिला जंग के दरियाई इलाके पानी में महसूर होकर रह गए। रास्ते वाज़िया होने का ताहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। बस्ती मोची वाला मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गई। मकीनों के मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे। बस्ती के 2-2 फुट तक पानी जमा है, जिसके बायस आमदोरफ्त के रास्ते भी सैलाबी पानी में खो गए हैं। अशिया खुरनोश उठाए सैलाब जदगान सैलाबी पानी से गुजरने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ये गुजारिश है कि जो गरीब इंसान यहाँ पे आए, उनकी सहूलत भी नहीं है, जो कुछ लेना पड़ता है वो बाज़ार से जाना पड़ता है, ना ही तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दुकान सब्ज़ी वगैरह आटा सब को बाज़ार से लेके आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। सैलाबी पानी के सबब दरियाई इलाकों में रसद के मसाइल पैदा होने लगे। नशेबी इलाकों में खड़ा पानी जल्दी अमराज को दावत देने लगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि मानसून बारिशों से दरियाओं में तुगियानी, दरियाए चनाब और मुल्लिका नदी नालों में सैलाब का खदशा बरकरार है। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। PDMA का कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर झंग और चिन्योट को अलर्ट जारी हुआ है। दरियाई तुगियानी से आने वाला सैलाबी रेला चिन्योट और झंग से मुल्लिका इलाकों को मुतासिर कर सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मानसून बारिशों से दरियाओं में तुगियानी, दरियाए चनाब और मलिका नदी नालों में सैलाब का खदशा है। आइंदा 24 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। PDMA का कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर झंग से चिन्योट को अलर्ट जारी। आपको अपडेट करें कि मानसून बारिशों से दरियाओं में तुगियानी का खदशा है। दरियाए चनाब और मलिका नदी नालों में सैलाब का खदशा है। आइंदा 24 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग है। PDMA का कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाई तवी से आने वाला सैलाबी रेला चिन्योट और झंग से मलिका इलाकों को मुतासिर कर सकता है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर सकें कि मानसून बारिशों से दरियाओं में तुगियानी का खतरा अभी तक मौजूद है। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल और बलूचिस्तान से ट्रांसपोर्ट आमद में कमी। झंग में टमाटर और प्याज की कीमतों ने आसमान से बातें करने लगी हैं। एक हफ्ते के दौरान प्याज 20 और टमाटर की कीमतों में इजाफा सामने आया है। प्याज 45 से 65, टमाटर 24 से 100 रुपये किलो महंगे हुए हैं। अक्टूबर में आने वाली पैदावार में वाज़ेह कभी कभी खदशा जाहिर किया गया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि सैलाबी सूरत हाल और बलूचिस्तान से ट्रांसपोर्ट की आमद में कमी, झंग और में टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते के दौरान प्याज 20 और टमाटर 26 रुपये किलो महंगे हुए हैं। प्याज 45 से 65, जबकि टमाटर 24 से 100 रुपये किलो महंगे हुए हैं। डिस्कोस में नई भर्तियां फौरी बंद। पावर डिवीजन ने तमाम नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तवाराई ने डिस्कोस में नई भर्तियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं, जिनको मुलाजमीन को डिस्कोस में खाली असामियों पर एडजस्ट करने का हुक्म दिया गया है। तमाम डिस्कोस को खाली असामियों की ताज़ा रिपोर्ट वजारत को अरसाल करने का हुक्म। लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती सिर्फ आउटसोर्सिंग से होगी। बराह रास्त डिस्कोस में भर्तियां मुकम्मल तौर पर ममनू करार। डिस्कोस को 27 अगस्त तक आउटसोर्सिंग प्लान जमा कराने का हुक्म।
नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में ग्रीन फील्ड नया एयरपोर्ट बनाने के लिए 2000 एकड़ जगह दरकार है। जगह फराहमी के लिए फैसलाबाद एयरपोर्ट मैनेजर का डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी कर दिया गया है। नए एयरपोर्ट की तामीर के लिए जगह फराहमी के लिए सर्वे किया जाएगा। जगह की निशानदही का सर्वे करके आगाह किया जाएगा। हकाइक के मुनाफी टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन के आड़े आ गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन की प्रॉपर्टी से मुतालिक 70 बड़े केसेस अल्तवा का शिकार, करोड़ों रुपए की टैक्स रिकवरी रुक गई। देखते हैं उमैर असमत की ये रिपोर्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी गया। वसूलियों के मामले पर प्रॉपर्टी के 70 बड़े केसेस मुख्तलिफ फोरम्स पर इल्तवा में पड़ गए। जायदाद मालिकान की जानिब से एक्साइज के फैसलों के खिलाफ मुख्तलिफ अदालती फोरम्स से रुजू किया गया। जेर इल्तवा केसेस में 40 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी भी लटक गई। शहरियों ने मौकफ अपनाया है कि हकाइक के मुनाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक जेर इल्तवा केसेस को मसालहत के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के हमराह उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा एक्साइज की जानिब से जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स को डिजिटलाइज करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। रिवायती तरीक़ेकार के तहत टैक्स वसूलियों के नतीजे में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज न किया जा सका। टैक्सेस मुकम्मल तौर पर ई पे पर मुंतकिल न होने से करोड़ों रुपए की माली बेजाब्तगियां सामने आ गईं। प्रॉपर्टी टैक्स में माली बेजाब्तगियां माली साल 2021-22 में हुई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। ऑडिट हुक्काम की कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करने की भी हिदायत। चंद बरस कबल वहीकल्स का टोकन टैक्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग पर मुंतकिल कर दिया था। ताहम प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और कॉटन ड्यूटी समेत दीगर टैक्सेस रिवायती तरीके से ही वसूल किए जा रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। सीटों के खात्मे से भी असातिज़ा की कमी पूरी ना हुई। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से 1100 सीटें खत्म हुई। अपग्रेड होने से स्कूलों को 1400 सीटें मिल गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रैशनलाइजेशन और आउटसोर्सिंग के बाद भी स्कूलों में असातिज़ा की कमी बरकरार। पंजाब हुकूमत के हजारों सीटें बचाने के दावे महज दावे ही रहे। फैसलाबाद से एक तरफ आउटसोर्स स्कूलों से 1100 सीटें खत्म की गईं, तो दूसरी जानिब अपग्रेड होने वाले स्कूलों को मजीद 1400 सीटें मिल गईं। सिर्फ फैसलाबाद में रैशनलाइजेशन के बावजूद सरकारी स्कूलों में 7000 से ज्यादा असातिज़ा की सीटें। फैसलाबाद बोर्ड में फेल होने वाले 99,413 तलबा को दोबारा नाहुम में दाखिला लेने की ऑफर। 33% से कम नंबर लेने वाले तलबा दोबारा दाखिला ले सकेंगे। उम्मीदवार नताज बेहतर बनाने के लिए 19 सितंबर तक जमात नाहुम में री एडमिशन करवा सकेंगे। तालीमी बोर्ड ने तलबा को री एडमिशन के लिए मज़ामीन और इदारा बदलने की ऑप्शन भी दे दी है। तलबा और असातिज़ा को स्कॉलरशिप और रियायती पॉलिसीज में तरमीम पसंद न आई। जनाब कॉलेज जंग में तलबा और टीचिंग फैकल्टी और दीगर स्टाफ का एहतजाज। कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। रिपोर्ट कर रही हैं वसीम अजीज। जनाब कॉलेज जंग में तलबा, टीचिंग फैकल्टी और दीगर स्टाफ सरापा एहतजाज बन गए। स्कॉलरशिप और रियायती पॉलिसियों में तरमीम के खिलाफ पूरा कॉलेज एहतजाज पर उतर आया। चेयरमैन जंग एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से स्कॉलरशिप पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। अब मुलाजमीन के बच्चों को सिर्फ ट्यूशन फीस में रियायत मिलेगी। मुलाजमीन के पहले बच्चे की फीस माफ, दूसरे को 50% अदा करना होंगे, जबकि तीसरे बच्चे की फीस में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एक ग्रेड 17 ग्रेड तक है ना, फर्स्ट 17 ग्रेड उनके जो से थे पहले जो बसेस की फीस थी वो नहीं देते, ना टीचर्स देते थे। अब उनके लिए बसेस की फीस भी होंगी, उनको कोई बच्चा फ्री पढ़ता तो उनके लिए फीस ही होंगी। तो ये इस वजह से उन्होंने आज एहतजाज किया। सुबह से वो यहीं पे थे। फीस वगैरह भी बनी है, पता नहीं स्कॉलरशिप्स भी खत्म हो गई है। 96% नंबर लेने वाले तलबा के लिए खसूसी स्कॉलरशिप स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। 96% या जायद नंबर लेने पर पहले साल ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट फीस मुकम्मल माफ होगी। दूसरे साल में भी 96% नंबर हासिल करने पर स्कॉलरशिप जारी रहेगा। दूसरी जानिब जरूरत की बुनियाद पर दी जाने वाली स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई हैं। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट रियायत खत्म, स्टाफ को 50% रियायत जारी रहेगी। तलबा ने स्टाफ के बच्चों की फीस में रियायत और दीगर मुतालबात की हल्की अपील की है। पर वो आए यहाँ पे हमारा सबका बात सुने, हमारी टीचर्स की बात सुने, जो वो कह रहे हैं वो माने, के अलावा उसके अलावा जो टीचर्स कहते हैं वो करें। तो है ना हमारे असातिज़ा, उनके साथ इंसाफ किया जाए। हमारे असातिज़ा के अगर वो लेना किराया तो वो बहुत ज्यादती है, वो उनके लिए बेइज्जती है, ये हमारे लिए भी बेइज्जती है। दिन भर एहतजाज के बाद कॉलेज इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मामलात के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, छंग।
रबी अव्वल की मुनासबत से मसाजिद को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मसाजिद जगमगा उठी। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद को झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मसाजिद में खुसूसी सजावट का सिलसिला जारी है। मसाजिद में रंग बिरंगी लाइट्स, खुशबुओं और कालीनों से खुसूसी तैयारियां की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली हैदर, आगाह कीजिएगा किस तरह से तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, आज माह रबी अव्वल के मुबारक महीने का चांद नजर आते ही फैसलाबाद के अंदर मसाजिद को रोशन करने का एहतमाम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ अगर बात करते जाएं लाइट्स की और बरकी कुमकुमों की, तो मसाजिद को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी लाइट के साथ जो है वो सजाया गया है। अगर मेरा कैमरामैन जैन आपको दिखा सके, अभी भी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से अभी भी मॉडल जो तैयार हैं उनको लाइटों के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। यहाँ पर मेरी दाईं जानिब अगर कैमरामैन जैन आपको दिखाए तो लाइटें जो हैं वो मस्जिद के ऊपर लगा दी गई हैं। मस्जिद के ऊपर बरकी कुमकुमों और इसके साथ साथ मस्जिद को खुशबुओं और खूबसूरत कलीनों के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। बात करते जाएं महाफल की, तो माह रबी अव्वल का तकरीबन सारा माह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए महाफल का इंतजाम किया जाता है और मसाजिद को खूबसूरत दिखाने के लिए यहाँ पर लाइटों को और इसके साथ साथ खूबसूरत रोशनियों से मसाजिद को सजाया जाता है और मसाजिद की सफाई सुथराई का भी खसूसी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का नारवा सलूक, टोबा टेक्सिंग में वकला की एहतजाजी हड़ताल, बेलगाम एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, मेल लिंक रोड की तामीर में इल्तवा पर 18 हजारी की शहरी सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस का मुबैना नारावा सलूक, वकला का पारा बार मेंबर पर वार्डन्स के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ वकला की एहतजाजी हड़ताल। वकला ने मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ मुकदमे करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन आबिद जमील का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस का तौहीन आमेज रवैया कबूल नहीं। DPO मुकदमा दर्ज करके जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वकला जालिमों के खिलाफ मजलूम की आवाज बनेंगे। असनैन अली कैसर साहब वो अपने चैम्बर से कल इतवार को क्लाइंट से मिल के वापस जा रहे थे। ये पुलिस एहलकार ट्रैफिक वाले खड़े थे, उन्होंने रोका, उस पर तशद्दुद किया और DPO टोबा टेक्सिंग ने हमें ये यकीन दहानी नहीं करवाई है कि आपकी FIR जो है वो हम आज तक जो है लॉन्च कर देंगे। वकला आज डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट्स टोबा टेक्सिंग के वकला हज़रात कचहरी में नहीं पेश हो रहे। 18 हजारी में मेन लिंक रोड 3 साल से नामुकम्मल, मौजा हवेली हाजी महमूद के शहरी सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि लिंक रोड मुकम्मल न होने से अवाम शदीद मुश्किलात से दोचार है। साबका दौरे हुकूमत में ग्रांट के बावजूद सिर्फ पत्थर डाले गए। सड़क मुकम्मल न होने से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टायर खराब हो रहे हैं। रोड की फौरी तौर पर तामीर हुक्म कराई जाए। शहरियों का कहना था कि अधूरे मंसूबे को जल्द मुकम्मल करके आसान सफर की सहूलियात फराहम की जाए। नाज़रीन, और अब आज होने वाले जराइम पर एक नजर। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मकसद खो बैठे हैं। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स और गाइड कांस्टेबल फ्राइज में गफलत के मुर्तकिब, थानों में गायब रहना मामूल बन गया। मुतासिर हुसूल इंसाफ के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। फैसलाबाद में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर और गाइड कांस्टेबल गायब रहने लगे। खवातीन साइलिन को डील करने के लिए खवातीन एहलकारों को विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात किया गया, जो ड्यूटी औकात के दौरान फ्राइज से गफलत बरतने लगी हैं। मुतअद्दिद थानों में तैनात विक्टिम सपोर्ट्स ऑफिसर का ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन चुका है। शहरियों की रहनुमाई के लिए तैनात गाइड कांस्टेबल भी थानों में दस्तयाब नहीं होते। साइलिन के लिए सहूलियात का फुकदान होने से सेप्स का मकसद फौत होने लगा। विक्टिम सपोर्ट्स ऑफिसर और गाइड कांस्टेबल ना होने से शहरी थानों में खुबार होने लगे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियां। टोबा टेक्सिंग में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन कंवर खालिद ने मसाइल सुने। फैसलाबाद में CPO बिलाल उमर ने शहरियों की शिकायत सुनी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टोबा टेक्सिंग में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन कंवर खालिद की खुली कचहरी जिला कौंसल हाल में कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मसाइल के हल के लिए राब्ता किया। मजमूई तौर पर 17 दरखास्तें मौसूल हुई। कंवर खालिद ने मसाइल सुने और मौके पर हल के अहकाम जारी किए। बोले, सबसे ज्यादा सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ दरखास्तें मिली। शिकायत पर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। झूठी शिकायत पर शहरी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पूरा अमला है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है
किसी को किसी वक्त किसी शिकायत हो, मुझे या सर्कल अफसर को या दूसरे हमारे अफसर को आप इतला करें। करप्ट एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वहाँ हमारी ड्यूटी है कि हम ऑनेस्ट और दयानतदार मुलाजमीन अफसरों का उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। फैसलाबाद डिवीजन में छोटे मसाइल ही बड़े इम्तिहान लेने लगे। कहीं सीवरेज मसाइल चैलेंज तो कहीं खस्ताहाल सड़कें वबाली जान बन गई। शहरियों को सीवरेज मसाइल से छुटकारा न मिल सका। फैसलाबाद के सुमंदी रोड से मुल्हिका मकबूल रोड सीवरेज के पानी से भर गई। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों का नुकसान होना आम बात बन गई। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी मसाइल दफा का शिकार। जामिया मस्जिद, कासमिया, गुलाम मोहम्मदाबाद से मुल्हिका रोड खस्ताहाल। मकीनों ने हुकाम से रोड की तामीर का मुतालबा कर दिया। चिन्नौर सरगोदा रोड बाईपास खंडरात का मंजर पेश करने लगा। सड़क का नामो निशान खत्म हो गया। 2-2 फीट के गड्ढे बन गए। हादसात आम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गई। चिन्नौर का मोहल्ला बुखारी टाउन इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। बारिश के बाद गलियों की अबतर सूरत हाल। पुख्ता गलियां न नकासी का कोई इंतजाम। मकीन फट पड़े। बारिश के बाद अब घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। ओवरटेक सिंह में रिंग रोड के किनारे जगह जगह से बैठ गए। बारिशों के बायस रिंग रोड के किनारे धंस गए। गड्ढों के बायस ट्रैफिक हादसा भी रिपोर्ट होने लगे। फैसलाबाद झुमरा रोड से मुल्हिका खुला नाला हादसात की दावत देने लगा। स्लेबों का नामो निशान तक खत्म हो चुका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर बारिश ने अकबर चौक से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट की हालत मजीद बिगाड़ दी। बारिश और सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन फैलने लगा। फैसलाबाद में पार्कों की बहाली पर काम शुरू न हो सका। बोलेदी झुग्गी के करीब क्रीसेंट पार्क खस्ताहाली का शिकार। 2 माह कबल पार्किंग एरिया के लिए की गई तोड़ फोड़ आज भी वैसे ही मौजूद। फैसलाबाद की गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी मसाइल का गढ़। जगह जगह कूड़ा करकट की वजह से दुकानदार परेशान। इंतजामिया से सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। ओवरटेक सिंह इंतजामिया ने पब्लिक वॉशरूम्स बनाकर फॉल करना भूल गई। अल हलाल चौक में 8 साल कबल वॉशरूम्स बनाए गए जो अब तक फॉल न हो सके। इमारत की हालत खराब होने लगी। के डिवीजन भर में इंतजामी मामलात बेहतर किए जाने लगे। अफसरान ने मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए और इजलास की सदारत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाए चनाब में एक बार फिर सैलाब का खतरा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चिन्योड का हंगामी इजलास। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने इजलास की सदारत की। लाइफ स्टॉक, एजुकेशन, हेल्थ और रेस्क्यू को अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम महकमा जात जो हैं वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। 1122 के हमने तकरीबन 8 के करीब कैंप्स जो है कायम कर दिए हैं, जहाँ पर हेल्थ और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो लोग दरिया के अंदर, दरिया के बीट के अंदर रह रहे हैं, उनको इंटीमेट किया गया है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी, और वहाँ पर लोकल अनाउंसमेंट्स के जरिए भी पटवारी एक्टिवेटेड हैं, ताकि वो लोग अपने जानवर और अपने जो है बाकी सामान लेकर बाहर आ जाएं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर का फैसलाबाद का दौरा। कमिश्नर के हमरा मनसूबा सुखदा वेड़ा की मुजव्विजा जमीन का मुआयना किया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर ने कहा खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आगाज कर रहे हैं। इसमें हमारा एक PC1 पूरा बन रहा है, सनज़ार्स का भी, और बाकी हमारे जो सेंटर्स हैं जो डिसेबल, खास तौर पर जो डिसेबिलिटी के हमारे बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। बल्कि आज ये सनज़ार्स का हमने मैडम से भी रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ साइट भी लेके देंगी। फैसलाबाद में रबीउल अव्वल के हवाले से अमन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर और सिटी पुलिस ऑफिसर बिलाल उमर ने सदारत की। मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, मुफ्ती जिया मदनी, साहबजादा फैज रसूल, मौलाना रियाज खरल भी मौजूद। ओवरटेक सिंह में पैगाम पाकिस्तान और रहमतुल आलमीन के हवाले से अमन कमेटी का इजलास। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद और डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद जमील हैदर शाह, DSP आसिफ भी शरीक। जिलाई अमन कमेटी के अरकान उलमा कराम और मजहबी शख्सियात की शिरकत। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौका पर इस्लामी नजरियाती कौंसल के अरकान का पीस टूर जारी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी उलमा मशाइख विंग साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद का दौराए जंग। सनतजार में मजदूरों के लिए तकरीब का इनकाद। MP अमजद अली जावेद ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राना काशिफ समेत दीगर की शिरकत। मरहूम मजदूरों की बेवाओं, यतीम बच्चों और बच्चों की शादी ग्रांट्स के चेक तकसीम किए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बारिश के बायस 12वें लालपुर T20 क्रिकेट लीग के मैचेस मुलतवी। बोहरावाली ग्राउंड की आउटफील्ड गीली जबकि पिचेस भी खुश्क ना हो सके। लालपुर T20 क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल मरहले के मैचेस होने थे। क्वार्टर फाइनल मरहला अब दोबारा आगाज 8 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई किया है।
नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतजाम सूबाई सतह के फुटबॉल मुकाबलों का आगाज गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा टेक्सिंग में 3 रोज़ा चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इवेंट में 9 अजला की बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस दानिश आवान का कहना था कि लीग सिस्टम के तहत मुकाबलों का इनेकाद होगा। पॉइंट्स टेबल पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेने वाली टीम फातेह करार पाएगी। टोबा टेक्सिंग फुटबॉल में मुसलसल 3 साल से चैंपियन के टाइटल का दिफा कर रहा है। फैसलाबाद में आज भी सकाफती रंग नुमाया है। कबड्डी के मैचेस जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रंग का नौजवान हल्का जिहा चुकिया, 4 जाफियां दी बनी संगली, चीन की कंध बनाई हुई है। अगे वेखो 4 चो किहनूं टच करदा, 4 तैयार बार तैयार आ। कन्नी वाले नौजवान ने झोके फड़ने की कोशिश की है। फैसलाबाद के दही इलाके सकाफती कबड्डी के फरोग का जरिया बनने लगे। जोशो जज्बे और ताकत व महारत का आयनादार खेल तमाशाइयों को राग़िब करने लगा। चक 52 मुल्लापुर में डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम जश्न आजादी कबड्डी सीरीज का फाइनल मैच चक 52 मुल्लापुर और चक 62 चंदन के दरमियान खेला गया। मुल्लापुर ने चंदन के को 25 के मुकाबले में 31 पॉइंट से हराकर फाइनल जीत लिया। चल जवाना पई हुई एक बार फिर कबड्डी, छोटा जिहा करदा नौजवान दा अली वाला, अगे 4 जाफी है। वेखो किहनूं करदा टच, बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गए और जियो जवाना जी। कबड्डी दही इलाकों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। नौजवानों के लिए बेहतर सरगर्मी है, शहरी इलाकों में भी होनी चाहिए। कबड्डी देखो जी एक ऐसी गेम है जिहदे विच रैसलिंग, कुश्ती, एथलैटिक भी तकरीबन 5-6 गेमां मिला के एक गेम बनती है। ਇਹਦਾ टाइम 30 सेकंड ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-12 ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 52 ਸਜਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 52 ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, अपना पंजाबी लहर सारे बिल्कुल कवरेज सही करते हैं। बड़ा स्टेडियम ना कोई बड़ा स्टैंड, फिर भी तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने उमड़ आई। तमाशाइयों ने खड़े होकर और जमीन पर बैठकर ही फाइनल मार्का देखा। डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तैयब गिलानी बोले, कबड्डी का खेल पंजाब की सकाफत में नुमाया हैसियत रखता है। जहाँ पंजाबी बोली जाती है वहाँ कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी एक नौजवानों का खेल आ, ये जोश और जज्बे का खेल आ। कहते ना तख्त पोश जे मजबूत जिसे ने जवाना दे मार थापियां खेडन कौडी विच मैदाना दे राजे खेले तू भी सिख ला भेत कबड्डी दे जान जोश ते फुर्ती ने दाप पेच कबड्डी दे। गांव देहात कबड्डी के खिलाड़ियों की नर्सरी कहलाए जाते हैं। हीरा भट्ट, हसनैन तैयब जैसे बड़े खिलाड़ी फैसलाबाद में कबड्डी को दिए हैं। आज भी फैसलाबाद के देहातों में कबड्डी का खेल जोरों शोर से जारी है। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद।